زیادہ سے زیادہ پیسے بچانا ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آن لائن شاپنگ کافی ہٹ ہے. نہ صرف ویرائٹی، گھر بیٹھے شاپنگ کا مزہ، بلکہ زبردست ڈسکاؤنٹ، آفرز، یہ سبھی باتیں آن لائن شاپنگ کو لوگوں کی فیوریٹ بناتی ہے. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ اور طرح طرح کے آفرز کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں لوگ اور غیر ضروری یا ان وانٹڈ شاپنگ کر بیٹھتے ہیں. نمسکار، میں ہوں کویتا تھپلیار اور آپ دیکھ رہے ہیں پرسنل فائنانس پر آپ کا پسندیدہ شو یور منی. آج یور منی کچھ خاص ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آن لائن شاپنگ سے جڑی ہر وہ ضروری بات جو آپ کو سمجھداری سے شاپنگ کرنے میں مدد کرے گی. اور آج ہمارے مہمان ہیں وائس انویسٹ ایڈوائزرز کے سی ای او ہیمنت رستگی. آپ کا سواگت ہے ہیمنت جی. تو چلیے یہاں پہ اتنے انٹرسٹنگ ٹاپک سے آج کی شروعات کرتے ہیں چرچا کی. آن لائن شاپنگ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بوم میں ہے اور اگر اس کے فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں. جو چیزیں آپ کو نہیں خریدنی ہوتی یا آپ وہ بھی خرید لیتے ہیں. آن لائن شاپنگ کے اس ٹریپ سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے اور خاص طور سے پرسنل فائنانس کے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو شاپنگ پر قابو پانا بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آن لائن شاپنگ سے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ آن لائن شاپنگ نے ہمارا جو شاپنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل بدل دیا. Exactly. پہلے جب ہم شاپنگ کیا کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں رہتی تھی. ہم یا تو کسی شاپ یا کسی اسٹور میں جاتے تھے. ہم ڈپینڈ کرتے تھے وہاں کے جو امپلائیز یا سیلس جو مین تھے یا جو ہمارے نیبرز یا ہمارے جو دوست تھے جو انفارمیشن ہم کو وہاں سے ملتی تھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. آن لائن شاپنگ آنے سے کیا ہے بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, بہت سارے ڈسکاؤنٹ آفرز. اگر آپ کسی بھی جو شاپر ہیں جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ہم سے پوچھیے تو وہ بتائیں گے کہ آن لائن جو ہے آف لائن سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جس طرح کے ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتے ہیں, جس طرح کی آفرز آپ کو ملتی ہیں, جو ویرائٹی آپ کو ملتی ہے, ایون کوالٹی کنٹرول, اگر کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس میں کافی فائدے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جیسا آپ نے کہا, جو ڈسکاؤنٹ اور جو آفرز ہم کو ملتی ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ ہم کبھی بھی کہیں سے بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے جیسے بھی کر سکتے ہیں. تو جب وہ ایسا ماحول میں ہم شاپنگ کرتے ہیں تو ہماری جو ایموشنل شاپنگ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم خوش ہیں تو ہم شاپنگ کرتے ہیں, اگر ہم اداس ہیں تو ہم شاپنگ کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو شاپنگ جب ایسے کرتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے, شاید جب اس سمے ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ہم لیتے ہیں. خاص طور سے ہماری ہیکٹک لائف سٹائل میں ہم ایز اے اسٹریس بسٹر کو شاپنگ کا استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, جیسا میں نے کہا اگر ہم اداس ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ چلیے شاپنگ کریں گے, اور ہمیں اگر ایسے میں کوئی ڈسکاؤنٹ مل گیا یا اچھی آفر مل گئی تو ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری ایک سینس آف اچیومنٹ ہے. تو ہم وہ سب چھوڑ کے ہم پورا دھیان یہاں پہ دیتے ہیں. تو کہیں جتنا پیسہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. انفیکٹ کافی بار ایسا دیکھا گیا ہے کیونکہ ڈسکاؤنٹ اور آفرز رہتے ہیں, جو چیزیں جیسا میں نے پہلے کہا شاید جس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں. اور اگر ہم جیسے اگر ایک چیز کی ضرورت ہے ہم نے 3 لے لیے تو اگر ڈسکاؤنٹ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو پتا چلے گا کہ اس کا بہت زیادہ کچھ ہم کو بالکل فائدہ نہیں ہوا. تو آئی تھنک آن لائن شاپنگ ایک بہت ہی صحیح طریقہ ہے شاپنگ کرنے کا. انفیکٹ ہم دیکھیں گے تو بہت کم لوگ ہیں ابھی ہندوستان میں جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. کافی لوگ ابھی بھی آف لائن شاپنگ کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ ایک کلک سے آپ شاپنگ کرتے ہیں تو جتنا سمے آپ شاپنگ سے پہلے لگائیں گے اتنے چانسز ہیں کہ آپ غلط شاپنگ نہیں کریں گے. بالکل, کیونکہ ہم جلد بازی میں کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو لگتا ہے بہت آسان ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم ایسی چیزیں خریدتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. بالکل, تو یہی کام آتا ہے یور منی, آپ کا فائنینشیل گائیڈ. ہم آپ کو بتاتے ہیں اب کہ آپ اپنی اس انچاہی شاپنگ سے کیسے ساودھان رہ سکتے ہیں, کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, اور کون کون سی چیزیں آپ کو آن لائن خریدنی چاہیے اور کون کون سی نہیں. جی دیکھیے, جیسے ہم نے کہا کہ یہ بات تو سچائی ہے کہ اگر آپ آج آن لائن شاپنگ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو ڈسکاؤنٹ یا آفرز ملیں گے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس سے کیسے بچنا ہے. تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹ آپ کو جو مل رہا ہے وہ واقعی میں اتنا اٹریکٹیو ہے بھی کہ نہیں. یہ ہم کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیے اس کے بھی طریقے ہیں. جیسے بہت سارے پلیٹ فارم یا بہت ساری سائٹس ہیں جو آپ کو آن لائن شاپنگ کرنے دیتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ بہت ساری سائٹس یا بہت ساری جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو دیکھیں. مطلب آپ ریسرچ کر لیں, ڈیفینیٹلی ریسرچ تمام طرح کے ڈسکاؤنٹ اور ڈیلز کا آپ ریسرچ کر لیں جو بھی آپ کو ویب سائٹ پہ مل رہے ہیں. دیکھیے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ آف لائن شاپنگ پہلے جو ہماری شاپنگ کرنے کا طریقہ تھا اس میں پرابلم یہ تھی کہ ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں تھی. آج ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہی ایڈوانٹیج کو اگنور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آن لائن شاپنگ کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ آپ کو
नहीं हो रहा है। आप रिसर्च कीजिए। ये ऑफ कोर्स एक काफी कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको देखना है। तो फॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो सिर्फ इसी चीज पे फोकस करती हैं, जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि जो बाकी साइट्स हैं वहां पे जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं, जो आइटम आप खरीदना चाह रहे हैं, उसके क्या दाम है। जिस साइट पे आप खरीदना चाहते हैं उसकी जो कीमत है, अगर उसके सामने अगर आप कंपेयर करें तो वो आपको ये भी बता सकती हैं कि कौन सी साइट पे या किस जगह पे आपको इससे बेहतर डील मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जो बहुत सारे, जैसे कूपन कोड्स, कूपन एक एक्चुअली अहम हिस्सा है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो उसके कोड्स जो आपको मिलते हैं या कैशबैक जो आपको मिलते हैं, आई थिंक सब तरह की इन्फॉर्मेशन। और यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि वो कैशबैक देख के आप इससे शॉपिंग ना करें। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि जैसा मैंने कहा, अपनी जरूरत के हिसाब से अगर आप सोच समझ के, अगर प्लान करके अगर अपनी शॉपिंग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा पैसा या जितना जरूरत है उससे ज्यादा खर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मतलब ये भी है कि आपको एक लिस्ट बनानी होगी, आपको ये डिफाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपको क्या खरीदना है और आपका बजट इतना है। देखिए, बिल्कुल जैसे जो भी हम चीज लाइफ में करते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे आपने पहले बात की, जैसे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूरी प्लानिंग करके चलते हैं। वही हमें शॉपिंग के लिए भी करना है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज हिस्सा क्या है कि हम एक तो अपना बजट बना लें हर महीने। देखिए, जैसे मैंने पहले बात की थी, इमोशनल शॉपिंग या इम्पल्सिव शॉपिंग जो है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो हम मान के चलेंगे कि कुछ ऐसे समय होते हैं जो हम थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। चीजें वाकई टेम्पटिंग होती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अगर आप प्रोवाइड करते हैं, या आपकी जो बड़ी शॉपिंग है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर आप एक टेलीविजन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 50, 60 या 70 हजार है, तो उसको अगर आप प्लान करें, आप कैसे प्लान कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम आज से 6 महीने या 7 महीने के बाद उसको खरीदेंगे, और उस समय खरीदेंगे जब डिस्काउंट ज्यादा मिलते हैं आपको। जैसे दिवाली के टाइम में हमने देखा कि डिस्काउंट जो है काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर हम उस तरीके से उसको टाइम कर लें, प्लान कर लें, तो होगा क्या कि हमें मालूम है कि इतना पैसा हमें जमा करना है, वो 6 या 7 या 1 साल में हम उसको जमा करें, और हम ऐसे समय पे खरीदें जब हमको डिस्काउंट ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो आई थिंक इस तरह से आप कहीं ना कहीं जो टेम्पटेशन होती है उसको काफी हद तक कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी बाइंग को टाइम भी कर सकते हैं। आप अपनी सेविंग शुरू कर दीजिए, और आपको पता है कि फॉर एग्जांपल दिवाली के समय अच्छे खासे डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे, डील्स मिलेंगी, तो आप अपनी शॉपिंग तभी ही कीजिए। और इस बीच आप ये कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन जाकर भी, यानी आप स्टोर्स में जाकर भी जो है प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और खासतौर से इंडियंस में जो टच एंड फील का कॉन्सेप्ट है, वो भी मेरे ख्याल से आप उसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपने अपनी बाइंग को काफी टाइम किया हुआ है। जी बिल्कुल, आई थिंक बाइंग को आप टाइम कर सकते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आप जो टच एंड फील का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम लाइफ में अगर कोई टेलीविजन खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे आप उसको देख लें कि वो दिखता कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, वहां से आप शुरुआत करेंगे। शायद आगे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग पे कंफर्टेबल हो, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जैसे हमने बात की थी, तो रिसर्च करना है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहां पे आप जाके देख सकते हैं किस तरह की वैरायटी है, और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वहां जाके फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना। आपको कंफर्ट होना चाहिए। जस्ट बिकॉज बाकी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आपको करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट होना चाहिए। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पे कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड को यूज ना करें। आज ऐसी फैसिलिटी है कि आप डिलीवरी के समय कैश दे सकते हैं। तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड को अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से बाहर रखेंगे, तो जो टेम्पटेशन होती है, जो इम्पल्सिव बाइंग होती है, वो मुझे लगता है काफी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है, अगर मुझे कैश देना है तो मुझे वो कैश जनरेट करना है, यानी मुझे वो कैश जमा करना है। तो अगर मैं जब जमा करने के प्रोसेस में लग गया, तो कहीं ना कहीं मेरी जो शॉपिंग है वो कंट्रोल शॉपिंग हो जाएगी। जैसे कि हम प्लान्ड बाइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई खास इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मुझे 12 महीनों में कुछ चीज खरीदनी है, अगले साल तक खरीदनी है फेस्टिवल के समय, और मेरा बजट इतना ही है, और चलो थोड़ा सा और हम बजट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉपिंग के लिहाज से क्या की जा सकती है? क्या पैसे बचाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल की जा सकती है। जैसा अगर आपने प्लान किया कि कुछ भी चीज आप 1 साल के बाद खरीदना चाहते हैं, और मान लीजिए उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं आपको हर महीने उसके लिए इन्वेस्ट करना है। तो जैसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये नहीं कि पूरी जो है वो हमेशा इक्विटी या डेट फंड में हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लिक्विड फंड है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, जहां पे आप ये पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक तो ये जो फंड है, इनमें जो रिटर्न आपको मिलता है वो बैंक से ज्यादा मिलेगा, और ये रिटर्न थोड़ा टैक्स एफिशिएंट भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे ऑप्शंस को देखिए जहां पे रिस्क ना ले, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जस्ट बिकॉज मार्केट अच्छा कर रहा है आप ऐसा नहीं सोचें कि एक साल में चलिए यहां भी पैसा बनाते हैं और वहां भी पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन शॉपिंग करना या जो भी आप खरीदना चाहते हैं, ऐसी ऑप्शन में जाइए जहां पे आप रिस्क ना लें, लेकिन रिटर्न अगर टैक्स एफिशिएंट हो और जो ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज्यादा मिले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो जहां तक महंगे प्रोडक्ट्स की बात है, ज्वेलरी हो गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए और कपड़े हो गए, आप चाहें तो ऑनलाइन इन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि आप थोड़ा सा टाइम देकर उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और साथ ही जैसे कि हेमंत ने भी बताया, कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। और सबसे पहला टिप यही होगा कि अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग ना करें, बल्कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहां पे अपना सकते हैं। और टेम्पटेशंस को सरेंडर मत कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें तो। चलिए, योर मनी में इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ। और मैंने अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तिकी और हमारे पहले दर्शक हैं आज के फिरोजाबाद से विवेक, जिन्होंने हमें फोन किया है। नमस्कार विवेक, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मुझे अपने घर बनाने के लिए अराउंड 20 लाख चाहिए 3 ईयर्स में। ठीक है, इसके लिए आपने कहीं निवेश किया है? हाँ, अभी निवेश तो नहीं किया है। अभी मैंने करंट मतलब 10,000 रुपए सोचे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मंथली निकाल सकता हूँ और थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, मतलब 5,000 रुपए और बढ़ा सकता हूँ, 15,000 तक कर सकता हूँ। तो उसके लिए मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट वो चाहिए था कि मतलब किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करूँ जिससे मैं अपना गोल अचीव कर सकूँ। 20 लाख आपके घर की फ्यूचर वैल्यू है? आपने इन्फ्लेशन को काउंटर करके? नहीं मैम, करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन काउंटर करके चलिए बताते हैं आपको अपने निवेश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हेमंत जी, इनका एक ही गोल है और मेरे ख्याल से काफी क्लियर है ये। उसे लेकर 10,000 निवेश कर सकते हैं। 3 साल है इनके पास, तो इट्स ऑलमोस्ट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कहाँ आप रेकमेंड करेंगे इन्हें अगर एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए तो? देखिए, क्योंकि इनका समय 3 साल का है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले या जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देख लें कि आपका जो टाइम होराइजन है वो कितना है। Exactly. यहाँ पे क्योंकि हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं विवेक, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल सही रहेगा। एसआईपी का फायदा यह है कि आप एक तरीके से डिसिप्लिन आ जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट में, और जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करें हर महीने आप इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑप्शन है, जो एसेट क्लास है, वो सही तरीके से चुनी जाए। जैसे हमने पहले शो में बात की कि जनरल परसेप्शन ये है कि एसआईपी मतलब सिर्फ इक्विटी फंड में ही चलता है, बल्कि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, मल्टी एसेट क्लास जैसे फंड भी हैं। मुझे लगता है 3 साल के समय के लिए उनको ऐसी ऑप्शन में जाना है जहां पे एक तो उनको रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन ये है कि जाके अपने बैंक में जमा कर दें हर महीने, या जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है उसमें जमा कर दें, तो कहीं ना कहीं में आपको रिटर्न फिक्स मिलेगा, लेकिन रिटर्न कम है, टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में अगर जाना है तो ऐसी ऑप्शन, क्योंकि 3 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो इक्विटी में अगर डालना भी है तो बहुत कम पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में जाना चाहिए। तो जो मल्टी एसेट क्लास फंड है उसमें जाएं। ठीक है। एक नई कैटेगरी ऑफ फंड है जैसे इक्विटी सेविंग स्कीम्स, इनमें आप डालिए पैसा। मुझे लगता है ये काफी अच्छी कैटेगरी है। इसमें 20 या 25% पैसा जो है, या तकरीबन 30% जो है वो डेट में जाता है, और करीब 50% पैसा जो है वो आर्बिट्राज में जाता है, और 20% पैसा जो है वो इक्विटी में जाता है। तो तीनों मिलके, क्योंकि इक्विटी आर्बिट्राज दोनों मिलके 70% है, तो ये टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी फंड माने जाते हैं। और मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर देखें जो दूसरे फंड्स हैं उनसे थोड़े सेफ हैं, क्योंकि आर्बिट्राज बिल्कुल सेफ ऑप्शन है और डेट भी सेफ ऑप्शन है, और इक्विटी में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में मार्केट डेफिनेटली अच्छा करेगी। और क्योंकि ऑप्शन जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये देख के अगर हम देखें तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफी सही ऑप्शन रहेगी यहाँ पे। अगर हम ये मान के चलें कि अगले 3 साल में आपको एनुअलाइज रिटर्न 10% मिलता है इन ऑप्शन से, तो 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उससे करीब 4 लाख का आप कॉर्पस बना पाएंगे। इनका जो एक्चुअली जो घर खरीदना है उसकी लागत है करीब 20 लाख। तो मुझे लगता है एट बेस्ट इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ये मार्जिन मनी के तहत जो पैसा चाहिए उनको वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको हाउसिंग लोन के ऑप्शन को देखना पड़ेगा। बट ये जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए
ये जैसा मैंने कहा इक्विटी सेविंग फंड है, जैसे कोटक का इक्विटी सेविंग फंड है, जेपी मॉर्गन इंडिया का एक इक्विटी सेविंग फंड है, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 या 2 साल और बढ़ा सकें तो फिर आप जो बैलेंस फंड है उनको देख सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। विवेक, यहाँ पे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है अपने गोल्स को लेकर। 3 साल में आप पूरे 20 लाख रुपए तो जमा नहीं कर पाएंगे, प्लस ये आपके घर की फ्यूचर वैल्यू भी नहीं है, आपको इससे कहीं ज्यादा जरूरत होगी। फिलहाल आप अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। आपको यहाँ पर 4 फंड हमने रेकमेंड किए हुए हैं, और हो सके तो अपने गोल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लीजिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नोएडा से रविंद्र का सवाल। नमस्कार रविंद्र, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो सही है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में है? बिल्कुल आपको बताएंगे। ये बताएं किस गोल को ध्यान में रखते हुए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है? मैम, मैंने जो गोल रखे हैं मैंने अपने बच्चों की शादी के लिए आफ्टर 25 ईयर्स 40 lakhs एंड बच्चों की एजुकेशन के लिए 20 lakhs आफ्टर 20 ईयर्स एंड रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है। 35 ईयर्स। साथ ही आपने 5 साल के बाद 30 लाख रुपए भी आपको जरूरत होगी घर खरीदने के लिए, क्या ये भी आपका कोई गोल है? मैम, मैंने अभी एक्चुअली में घर ले लिया है ऑलरेडी। अच्छा, ओके। तो ठीक है, आपके ये लंबी अवधि के गोल्स हैं, लक्ष्य हैं जो आपने अपने लिए डिसाइड किए हुए, निर्धारित किए हुए हैं। आप और कितना निवेश कर सकते हैं? मैम, अभी मैं और इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं 5,000 और इंक्रीज करना चाहता हूँ पर मंथ। ठीक है, तो कुल मिला के 10,000 का आप निवेश करना चाहते हैं, और आपने ये पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है, आपके पास टर्म प्लान ऑलरेडी है, और साथ ही आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, LIC जीवन सरल और टाटा AIA महा गोल्ड में। चलिए सबसे पहले इनके पोर्टफोलियो पे डालेंगे नजर। इन्होंने जो 4 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? आई थिंक कविता, फंड से पहले मैं चाहूंगा कि मैं इनका जो इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि इनके पास 50 लाख रुपए की एक टर्म प्लान है, इनकी जो सालाना इनकम है वो 4 लाख रुपए है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, जो थंब रूल की हम बात करते हैं 10 गुना, तो जो टर्म प्लान है क्वांटम बिल्कुल सही है। बाकी जो 2 प्लान है वो ट्रेडिशनल प्लान है। बिल्कुल। क्योंकि SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता नहीं कि वो जो दोनों प्लान है, एक एंडोमेंट प्लान, एक होल लाइफ प्लान जो टाटा की, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनके पोर्टफोलियो में रहेगा। तो मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं इसको ये फेज आउट कर लें। जहां तक इनके फंड सिलेक्शन का सवाल है, इनके पास 4 फंड है, चारों फंड मेरे हिसाब से अच्छे हैं। शायद मेरे के जो फंड की बात कर रहे हैं शायद वो अपॉर्चुनिटी फंड है, पूरा नाम उन्होंने लिखा नहीं है, तो मुझे लगता है अगर अपॉर्चुनिटी फंड है तो डेफिनेटली अच्छा है। चारों के चारों फंड में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। और जो पैसा इनको इन्वेस्ट करना है 5,000 रुपए, वो इन्हीं में से 2 फंड हैं। जैसे रेलिगेयर इन्वेस्को का जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड है उसमें 2,000 डाल सकते हैं, और इनका जो बैलेंस एडवांटेज फंड है ICICI का, उसमें 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, मुझे लगता है जैसे इन्होंने टारगेट की बात की, जैसा हम हमेशा कहते हैं, मैं चाहूंगा कि हर गोल के लिए थोड़ा थोड़ा अलग से अगर पोर्टफोलियो बना के रखें तो कहीं ओवरलैपिंग नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये पूरा कंट्रोल में रहेंगे कि जो भी इनका टारगेट है जिस गोल के लिए, उसमें कितना अचीव कर पा रहे हैं और कितना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बजाय इसके कि एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें से पैसे निकाल के आप दूसरे गोल्स को इस्तेमाल करें। अगर अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मुझे लगता है इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप आगे चलकर कर सकते हैं रविंद्र जी। आपको 2 फंड्स के नाम बता देते हैं जिनमें आपको अपना निवेश बढ़ाना है, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और रेलिगेयर इन्वेस्को स्मॉल एंड मिड कैप। इन्हीं में आप जो एडिशनल 5,000 रुपीज डालना चाहते हैं, इन्हीं 2 फंड्स में डालिए और अपने निवेश को हर साल आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए हेमंत। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर, और साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं।